Okay, we have started the recording. Now let us start with our lecture. Okay. Now, as you all know, we have completed your chapter 5. All the students, please mute yourself. अपने आप को म्यूट रखें सब लोग प्लीज. Okay, we have completed your 5 chapters. Now we are going to start with your 6th chapter, that is directing. So before we start your chapter, let us understand your blueprint. As per the old uh, uh, what we say pattern, 10 marks questions will be asked from this chapter. इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ एमसीक्यू. एमसीक्यू का 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. सेकंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. 2 मार्कर्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हाउ मेनी? 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 2 markers, and 5 markers 1 question will be there. In that option will be provided. मतलब उसके ऑप्शन में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा. So total 10 marks, 5 marks का 1 question, 2 marks के 4 you can say 2 questions, that will be 4 marks, and 1 MCQ will be included from this chapter. Yes or no? So now over here from directing, what do you understand by the word directing? Directing क्या है? मतलब to give orders, or you can say give instructions. Like for example, I gave you direction that at 10:30 a.m. So today, 9:30 a.m. today we will have your OCM lecture. That was direction given by me. And as per the direction given by me, most of the students who are interested to study are present here. Fine. So this is the step which is taken after we complete your planning and organizing stage. First we make the plan. First हम लोग plan बनाते हैं. After that we implement the plan, and you can say for implementation we create an organization. Organization structure होगा. ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा. यस और नो? तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल यू कैन से स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करने के बाद में द नेक्स्ट स्टेप वुड बी गिविंग डायरेक्शन. Giving direction to who? Giving direction to, you can say, the people who are the part of the organization. Now direction कहाँ से flow होता है? It will flow from top level to the middle level, and from middle level towards the bottom level. Yes or no? That we all know. Okay. So this is all about the introduction of directing. Any questions? Any student about the introduction part? And the important thing about giving direction, it should come from the person who is having quality of leadership or quality of giving orders. Not every person, it is not every person's cup of tea to give orders. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर बोलता है लेकिन सबऑर्डिनेट सुनते भी नहीं है. लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरा कलीग भी मुझे बोलेगा तो आई विल लिसन, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग दैट क्वालिटी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल. It is very important to have that quality in you. So we are going to study about what is you can say directing. What are the you can say characteristics of directing? What are the importance? Yes, Jia, you have any question? Unmute yourself and ask if you have any question. Okay, let us move further. Now, to get the best result, it is very important that you give proper direction. Jia, what is your problem? Jia Pandey.
Jia को कुछ problem थी, she left. I removed her. She was having certain problem with her emojis and all that. So it is better to have good students instead of having, you can say, not attentive students. Okay. So the thing is, it is very important that you give proper direction to your employee, because only with the help of that proper, you can say, instruction, you can get the best results. Okay, if you want to get the expected results, your instruction should be proper. अगर आपने instruction ही गलत दिए हैं, suppose if you are making some recipe and you are following certain you can say video on YouTube, अगर वो instruction जो video पे दिए गए हैं वो गलत है, then answer the result which you will get would be, it would be not as up to the mark. So the direction which you get, it should be proper. So direction का मतलब क्या होता है? Giving guidance to the people around you, make them aware what you want from them. आपको उसके पास से क्या चाहिए as an employee, give them supervision and maintain the enthusiasm to work. See, right now the corona time is going on. So after certain time, people get exhausted to work from home. Work from home से भी बहुत सारी problems हो रही है. आपको लगता है बहुत easy है, पर ऐसा नहीं है. But लोग घर पर रहकर भी exhaust हो जाते हैं. So the companies are creating certain virtual games and everything to create the enthusiasm, or you can say boost the morale of the employees. उनको online games खिलाते हैं, online competition रखते हैं. Yes or no? जैसे for example, as and when we completed our 3 to 4 chapter, we had one test. Yes or no? हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था. उससे क्या होता है, बच्चों का मोरल बूस्ट होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमने उसका टेस्ट दिया और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट वेरी गुड मार्क्स, तो इट विल बूस्ट योर मोरल दैट आई शुड वर्क मोर. अगर कम भी आए, देन ऑल्सो इट विल बूस्ट योर मोरल कि भाई ओके, मेरे को और अच्छा करना है. See, failure is the one step behind the success. फिर अगर आप कम मार्क्स भी लेके आते हैं, तो that means that next would be your success. एक बार कम मार्क्स है, next would be you'll get good marks. So you can say what we say direction. It is guidance given for accomplishment of the objectives, as well as to keep the enthusiasm of your employees. Okay? It is guiding your employees and your subordinates. Now in this chapter, first we have understood the concept. Okay? It is like making a strategy, like you make a strategy of war. जैसे हम war में एक strategy बनाते हैं, same way we make our strategy before giving it the direction. ठीक है? So in general terms, what is direction? It is giving guidance and supervision to the employees. Clear with this? Hinal, understood beta? I could see your face, that is why I am asking you. Yes, ma'am. ओके, तो क्लियर विद द मीनिंग एंड अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं. मीनिंग में किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो दे कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, बिकॉज मेरा बाजू में मोबाइल चालू है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपका चेक करती रहूंगी. मुझे जूम पे मैसेज मत करना, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करती रहूंगी. किसी को जहाँ पे भी डिफिकल्टी आए, एक बच्चे का जैसा इट इज ऑलरेडी 9:30 AM, मैंने भेज दिया लिंक और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. नेटवर्क का इश्यू होता है, इसलिए लिंक भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरा. ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू हैव द लिंक नाउ एंड ऑल ऑफ यू हैव जॉइन. अच्छा, तो मीनिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मुझे कोई मैसेज नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. जिसको जो डिफिकल्टी है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, तो मैं आपको डिफिकल्टी आपकी सॉल्व करती रहूंगी साथ साथ में. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. गोल ओरिएंटेड, अब एक सिंपल मैं बताती हूँ. कोई भी एक्टिविटी, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, एवरी एक्टिविटी इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. आप ऐसा ही बोलोगे कि जो भी एक्टिविटी है ना, वो सब क्या है, आपकी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है. ये जो आपका गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है ना, पेज नंबर 61 पे देखो. गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, गोल का मतलब क्या होता है, एम और द थिंग विच यू वांट टू अचीव. ठीक है? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी मेरे पास आए हो, जूम लेक्चर्स में पढ़ रहे हो. आई होप आई एम ऑडिबल.
किसी को वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप लोग सब सपोज मेरे ये जूम लेक्चर ले रही हूँ और आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट इज योर माय गोल इज टू कंप्लीट योर सिलेबस इवन इफ इट इज दिस इज एट द टाइम ऑफ कोरोना। मेरा काम ये है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करूँ। योर गोल इज टू गेट सक्सेस इवन इन द टाइम ऑफ कोरोना। तो आप घर बैठ के भी यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर एंड you can say moving towards your goal. So it is a goal oriented activity means एक सेकेंड मैम, वो बच्चे बोल रहे बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है। हाँ बोला बेटा, ओके ठीक है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट वुड बी योर गोल का मतलब तो आपको पता ही है, हमने प्लानिंग में और सब में किया हुआ है, दैट इज एम और बोलते हैं ना आपका लक्ष्य, दैट इज योर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सेकेंड, इट इज एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल गिव डायरेक्शन टू द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल गिव डायरेक्शन टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड इन बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर वुड बी फोरमेन्स एंड वर्कर्स। ठीक है, तो द सुपरवाइजर्स दे वर्क इन द बॉटम लेवल। टॉप लेवल पे क्या कौन कौन होते हैं? सीईओ ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ ऑफ द कंपनी एंड जनरल मैनेजर, ही इज ऑन द टॉप लेवल। मिडिल लेवल पे आपके यू कैन से डिफरेंट एरिया मैनेजर्स जो होते हैं वो रहेंगे। बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर्स, फोरमेन्स एंड वर्कर्स। सो डायरेक्शन इट फ्लोज फ्रॉम टॉप, ये जो है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, and bottom level of management top level of management will give instruction to the middle level of management, middle level will give instruction to the bottom level, and in bottom level also it will flow from supervisors to the jobbers and as well as on the worker. So it is C at the every level of management. Only thing is the responsibility of top level of management is high, the responsibility of middle management is less, and the responsibility of bottom level is lowest. ठीक है, तो डायरेक्शन हर लेवल पे है, बट it's you can say quantity would be less or more or less different at different level. Higher the level, higher would be responsibility, lower the level, lower will be the responsibility. ठीक है, next it is a continuous process. For example, I have given you direction of टुडे, मैंने आपको आज डायरेक्शन दिया कि टुडे द लेक्चर विल बी एट 9:30 AM, जूम लेक्चर विल बी देयर। इज इट ओवर नाउ? ऐसा तो नहीं है ना, इट विल बी कंटिन्यूड नेक्स्ट टुमारो। अगेन टुमारो आई विल हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू यू। आज अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी तो वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके, जैसे आपने बोला बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, तो वो सब रिजॉल्व करके अगेन टुमारो वी विल हैव लेक्चर। यस और नो? सो इट इज अ कंटिन्यूअस me teaching you is giving direction about OCM subject. So it is a continuous process, and it will be from the beginning of the business जब start होता है till the end of the business, direction is to be given. जब business start होगा तब हम direction किसका देंगे, that how to establish the business, how to increase the business, how to increase the wealth of the business. जब business close होगा तो हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर एसेट्स, कैसे अपने बिजनेस को यू कैन से एसेट्स को सेल करें, द डायरेक्शन विल बी गिवन रिलेटेड टू दैट. सो डायरेक्शन अगेन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नेक्स्ट वुड बी ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्कशन. नाउ डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन सुपरविजन. जैसे एग्जाम में एग्जाम हॉल है फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में इस साइड में मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं. अब मुझे इनमें से किसी का बिहेवियर सही नहीं लगेगा, तो व्हाट आई वुड से इज कि यू हैव टू इम्प्रूव योर बिहेवियर. आपका वॉलपेपर सही नहीं है या फिर वॉट एवर इट मे बी, मैं आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दूंगी. फाइन. सो फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व, मतलब I will see your behavior. Then if at all there is something wrong in your behavior, अगर आपके behavior में कुछ गलत होगा, then I will give you instructions, है ना. Then I will give you instructions कि भाई आप ये गलत कर रहे हो. अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो I won't stop. एक एग्जाम्पल देती हूँ, गूगल मैप्स सबने यूज किया है. All of you have used the Google Maps. सबने कहीं ना कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स यूज किया होगा. हिनल, can you give answer yes or no so that I can see I can feel that I am audible. तुषार, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am.
उमा, यस, ओके। सो आप लोगों ने गूगल मैप्स यूज किया है। नाउ गूगल मैप्स क्या करता है, इट विल ऑब्जर्व यू, योर व्हीकल और यू, और जहां पर भी आप गलत जाओगे तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि यू हैव टू मूव बैक। ठीक है, आपको या तो पहले से बता देगा कि आगे से आपको 100 मीटर्स में यू हैव टू टर्न लेफ्ट, 100 मीटर्स में यू हैव टू टर्न राइट। लेकिन अगर सपोज इफ यू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब आपको बोला लेफ्ट जाने की जगह आप लोग राइट में चले गए, तो अगेन या तो वो बोलेगा कि गो बैक। अगर आगे का रास्ता डेड एंड है तो वो बोलेगा यू हैव टू मूव बैक। अगर आगे का रास्ता डेड एंड नहीं है तो आपको नया एरिया बताएगा, नई मेथड बताएगा कि हाउ यू कैन गो टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो व्हाट गूगल इज डूइंग, गूगल मैप्स इज ऑब्जर्विंग, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। किससे ऑब्जर्व कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। किससे ऑब्जर्व कर रहा है? जीपीएस। आपके मोबाइल के अंदर एक जीपीएस होता है, उससे वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और जहां पर आप मिस्टेक करोगे इट विल जंप इन, वो फिर जंप करेगा कि भाई यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, या फिर आगे जाके आपको राइट लेफ्ट जो भी लेना है, दैट इज डन। फाइन। सो दैट इज फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू बिफोर गिविंग डायरेक्शन। एज अ टीचर फर्स्ट आई विल टेल यू टू डू द सम। जब सम में कुछ गलत होगा देन आई विल एक्सप्लेन कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। गॉट माय पॉइंट? सो डायरेक्शन इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ whom? The person whom you have to give the direction. Suppose you have to give direction to your employees, or suppose you have to give instruction to your manager. Suppose as a CEO of a company, you will observe your general manager, and after observing his work, you will give the instruction to the general manager. As a general manager, you will observe the work of your subordinate managers, ठीक है, sales manager, purchase manager, and then you will give instruction. As a sales manager, you will observe the work of your supervisor or your salesperson, and then you give the instruction. So first thing you have to do is observe. जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में आपने हमको देखा है, वी आर नोन एज सुपरवाइजर्स। ठीक है, सो आवर जॉब इज टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स एंड देन गिव इंस्ट्रक्शन। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन। यानी मैंने अभी हाईलाइट किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। इनिशियली पर्सनली जाने की जरूरत थी, अभी बहुत इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ कैमरास। सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, है ना, तो you can observe the work of your employees with the help of CCTV cameras, and you can give instruction whenever they go wrong. ठीक है, next is wider scope. Wider scope is again a common characteristics of all the, you can say, functions of management. एक तो था goal oriented activity, second is your wider scope. It is not just guiding the employees, but you have to first make such an, you can say, instruction panel of instruction आपको एक ऐसा बनाना है which will be beneficial for your organization. So it is not just giving orders, first you have to create those orders, and the creation of that orders required lots and lots of you can say experience. Like for example, every time when we start a lecture, I give you your blueprint. आज भी मैंने आपको ब्लूप्रिंट दी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, यस और नो? आई हैव दैट एक्सपीरियंस। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि whenever we start, you should give the blueprint to the students, and then whenever we complete, we should give the homework to the students. That will help them to understand the topic very well, and it is my experience which says that giving examples helps the students to understand. So I am giving direction. It is not an easy task. आप सभी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप में से कोई भी ये चैप्टर पढ़ा सकता है, yes or no? पर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक टॉपिक भी पढ़ाओ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड विद दिस फील्ड. Maybe after 4-5 years, after you complete your graduation, post graduation, you will have that, you can say, level of knowledge. So it is a wider scope, and director needs to have wider knowledge and experience before giving direction. उसके अंदर एक quality of leadership होनी चाहिए. There are a number of teachers who failed to deliver a single lecture in the classroom because of lack of experience or confidence or quality of leadership. So that is very important. Next, clear with this? Uma, is it clear? Tushar, Hinal, एक मिनट, let me check मोबाइल, किसी का मैसेज तो नहीं आया? नहीं, किसी का नहीं आया. Okay. बैकग्राउंड का ही इशू था और कोई इशू नहीं था. क्लियर विद दिस? नेक्स्ट वुड बी योर कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट
एंड फॉरमोस्ट फॉर दिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट अ रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन, दैट इज कम्युनिकेशन. ये बेसिक डेफिनेशन है दैट यू हैव स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान, ठीक है. अगर मैं अभी मारवाड़ी में लेक्चर लेने लग जाऊं, या फिर अगर सपोज मैं साउथ, उससे भी वर्स में बताती हूँ कि मैं साउथ इंडियन होती, और अगर मैं साउथ इंडियन तमिल में अलग अलग कलर लेक्चर लेने लग जाती तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आता नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट थिंग ऑफ first prerequisite of giving direction that you should have proper communication. Now communication सिर्फ word से नहीं होती है, you can communicate even with your gesture. फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में है तो इफ आई वुड जस्ट पुट लाइक आई वुड से, अगर सपोज किसी बच्चे को बोलूं जस्ट पुट दिस काइंड ऑफ जेस्चर, दैट मीन्स यू हैव टू स्टैंड अप, है ना. तो इवन विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, अगर मैं मेरे हाथ को इस तरह से ऊपर करती हूँ, दैट मीन्स आई वांट यू टू स्टैंड अप एंड गिव मी द आंसर, यस और नो. और इफ आई वुड स्टेयर अ स्टूडेंट लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गड़बड़ की है इसलिए मैम मुझे स्टेयर कर रही है. इवन विदाउट सेइंग अ वर्ड ही वुड इम्प्रूव हिज और हर बिहेवियर. तो कहने का मतलब ये है, कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन ऑफ गिविंग यू कैन से डायरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड अगेन हैविंग कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट, ठीक है. ये सबके अंदर नहीं होती है. Many a times I have seen students who make a sentence जिसका कोई मतलब नहीं निकलता. आपका पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू से कि भाई टुमारो देयर इज अ सुपर टेस्ट, मैं अगर ऐसा बोलना चाहती हूँ कल टेस्ट है ऑफ OCM, तो मैं क्लास में आके बोलती हूँ कल सबको आना है, कल मैडम कुछ है ना टेस्ट लेने वाली है. अब कौन सी मैडम कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट, देयर आर 7 सब्जेक्ट्स, कौन से लेक्चर में टेस्ट लेगी मैं कुछ नहीं बताती. तो दैट मीन्स मैंने मिसकम्युनिकेशन किया. एज ए मॉनिटर मैंने क्लास में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. तो जब आप कम्युनिकेट करते हो तो यू शुड बी कम्युनिकेटिंग इन अ प्रॉपर वे सो दैट जो सामने वाला पर्सन है ही वुड अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शन एंड ही कैन टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोलो कि ऑडिट है, ठीक है. अब ऑडिट किस चीज का है, किस चीज का ऑडिट है, एक सेक्शन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का है या पूरे डिपार्टमेंट का है, या फिर ऑडिट किसका है, गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या फिर लोकल यू कैन से ऑडिट है. तो यू कैन से अकाउंटेंट वुड बी इन अ डिलेमा दैट व्हाट ही हैज टू डू एज सच, है ना. तो या फिर ऐसे बोल रहे कि बॉस आ रहा है, तो बॉस कब आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, नरसों आ रहा है, कौन से बॉस आ रहे हैं, कुछ नहीं. अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस, yes or no. So it is very difficult to take right decision at the right time if there is no proper communication. Next will be your motivation. First and foremost, as I told you, after a certain time, as there is you can say continuation of similar words, एक सिमिलर वर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है तो उसका काम पूरा दिन अकाउंटिंग ही रहेगा, या फिर एक यू कैन से सेल्स पर्सन है तो उसका काम सेल्स ही रहेगा. तो आफ्टर सर्टेन टाइम ही गेट्स बोर्ड एंड यू कैन से he get demotivated कि भाई ये क्या है रोज के का ये काम. So you have to solve the problem. कैसे solve करोगे? First you can change give the direction in such a way that something new is created for the job. yes or no. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स है तो बैंक्स में कैसा रहता है कि यू आर गिवन डिफरेंट डिपार्टमेंट. 10 दिन में आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा. 10 दिन आप मनी कलेक्ट कर रहे हो, आफ्टर 10 days यू विल बी कलेक्टिंग राइटिंग पासबुक एंट्री करना. आफ्टर 10 days तो क्या होगा, आपका काम का रोटेशन हो रहा है ना. तो एज अ मैनेजर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रोटेट द वर्क अमॉन्ग्स द एम्प्लॉयज. हिनल तूने चाय नहीं पी, अगली बार चाय भी क्या ना. ओके. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मोटिवेट करना है, कैसे करोगे, काम रोटेट करो, यू गिव रोटेशन. अब रोज रोज रोटी बनाना, खाना बनाना बोरिंग हो जाता है. मम्मी बोले चलो एक दिन खाना बना ले, दूसरे दिन आप झाड़ू पोछा कर दो, तीसरे दिन ये कर दो, तो एक क्या होगा कि काम बदल जाएगा. तो आपको इट विल बी न्यू एक्सपीरियंस. हम लोग वेकेशन पे क्यों जाते हैं, व्हाई यू गो फॉर वेकेशन? वेकेशन पे इसलिए जाते हैं जिससे हम लोग को चेंज मिले. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव दैट चेंज so that your employees would be motivated to work.
ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज. ओके, 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो हम लोग फटाफट ये दो पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं. फ्लो ऑफ डायरेक्शन. नाउ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज डाउनवर्ड. मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉप लेवल विल गो टू द मिडल लेवल, फ्रॉम मिडल लेवल इट विल गो टू द बॉटम लेवल, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि टॉप, मिडल एंड बॉटम डायरेक्शन इज ऑलवेज बॉटम. ये कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम रिपोर्टिंग कहाँ से करते हैं, मिडल, टॉप, बॉटम लेवल की विल रिपोर्ट टू द मिडल लेवल, मिडल लेवल विल रिपोर्ट टू द top level. The flow of direction, it is from bottom then middle to top for reporting, but direction ka you can say flow kaisa rahega, from top level it will go to the middle level and middle level it will go to the bottom level. So it is downward flow. And next is, it is a managerial function. Direction का जो main element है is to give orders. और orders कौन देंगे, बॉस देंगे. orders कौन देते नॉर्मली, घर में बॉस कौन है, मम्मी के पापा. सबके घर में अलग अलग है, किसी के घर में मम्मी, किसी के घर में पापा, तो या फिर किसी के घर में नाना नानी, किसी के घर में दादा दादी. तो जो भी आपके और किसी के घर में क्या बोलते हैं, बच्चे ऑर्डर देते हैं. तो कहने का मतलब ये है, एवरी फैमिली हैव देयर ओन हियरार्की, यस और नो. तो आपके जो भी ऑर्डर्स है वो आपके टॉप लेवल पर्सन्स है, दे विल गिव. सो डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, मतलब इट इज गिवन बाय द बॉस टू द सबऑर्डिनेट्स. Okay, so this is all about the characteristics of directing. Any difficulty in this, just send me the message as early as possible so that we can solve your difficulty. किसी को कोई difficulty है, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ मैसेजेस है तो. वाइडर स्कोप. वाइडर स्कोप इसीलिए है कि सपोज आपको मुझे आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस देना है कि भाई मेरे को आपको ये बताना है कि आपको अपना करियर के बारे में व्हाट शुड बी योर करियर, आपको सीए करना है, सीएस करना है, तो पहले मुझे उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो गिविंग एडवाइस, डायरेक्शन क्या होता है, यू आर जस्ट एडवाइजिंग अ पर्सन. सो बिफोर गिविंग एन एडवाइस you yourself should have the proper knowledge and efficiency. तो कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी गाइडेंस या फिर कोई भी एडवाइस देने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी, मैनेजर के अंदर वो डिसीजन पावर होना चाहिए. तो इट इज नॉट अ नैरो स्कोप, इट इज अ वाइड स्कोप, प्लस इट इज ऑन ऑल द लेकिन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि एज अ सुपरवाइजर यू हैव नॉट टू जस्ट गिव डायरेक्शन, यू हैव टू मोटिवेट. मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तो आपको उसको मोटिवेट भी करना है कि भाई आपकी बात वो सुने. तो द पर्सन हु इज गिविंग डायरेक्शन, ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, ही शुड हैव क्वालिटी ऑफ गिविंग मोटिवेशन, ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल all together to have knowledge of different areas, then only he can become a director. ऐसे ही कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता. हर पर्सन जो 12th स्टैंडर्ड पास करे, हर पर्सन जो ग्रेजुएशन कर ले, वो टीचर नहीं बन जाता. उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आप अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सको. तो इट इज अ वाइड स्कोप, नैरो स्कोप नहीं है. इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड इट इज ऑन द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, समझ में आया किसका क्वेश्चन था ये? There is some student, Dhruvi, it was your question. I hope you understood. समझ में आया? It is not, इसका अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका explanation Dhruvi. और कोई question? Thank you, ma'am. Okay, बेटा. Any other question? Uma, Hinal, other students? No, Okay. no, ma'am. Okay. एक मिनट. So now monitors में कोई है यहाँ पर? Hinal is there as a monitor, मुझे दिखाई दे रहा है. और प्रियांशी है, जो भी है मॉनिटर्स. हिनल आप एक काम करना, अटेंडेंस ले लेना बेटा, सभी बच्चों की स्क्रीनशॉट ले लो so that you can take the attendance of the students. Fine. So from now onwards, as many of the students, हर्षवर्धन के पेरेंट्स थे या एक दो बच्चों के पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि जूम लेक्चर क्यों नहीं लेते हो मैम.
तो आई विल टेक द जूम लेक्चर. जूम लेक्चर में प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे अभी मैं आपका जूम लेक्चर ले रही हूँ, साथ में फिजिक्स साइकोलॉजी का लेक्चर चल रहा है, तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग अगर हो सकेगा तो आई विल पुट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, सो दैट जिसका ऑल्टरनेटिव लेक्चर चल रहा है दे कैन अटेंड द लेक्चर आफ्टरवर्ड्स. फाइन. So 4 minutes are left. Any questions till now? Any students? अभी भी किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है रिलेटेड टू कैरेक्टर? यस मैम, आप YouTube पे वीडियो डालते हो तो मतलब हमको सर्च करना होगा तो कैसे मिलेगा कोई भी चैप्टर का मैं वीडियो? लिंक भेजती हूँ ना बेटा आपको. तो मैम मतलब उसमें ऐसा करो ना, मतलब जैसे कि कोई चैप्टर है तो चैप्टर के बाद वो #1 #2 होता है, तो समझ आए ना, मतलब ये इसके बाद वाला वीडियो है ऐसा. Okay, I will do that. I always put the name of the chapter in the initial, if I'm not wrong. I put 12th OCM chapter 1 या फिर वो डालती हूँ मैं, और नीचे डालती हूँ मोना शर्मा, but still I will just work on it कि भाई hashtag भी ऐड कर दूँगी. Okay, any other question? पवन, संगीता, रश्मित, उमा, विश्वा, ध्रुवी, हिनल, हर्षवर्धन, ध्रुवी, राठी ध्रुवी, खुशी जैन, जतिन, आसोदिया, यश. Any other student, any difficulty? Okay, so okay, so should we continue with Zoom lectures now, or do you want the recordings? Zoom lecture okay है आप लोगों के लिए? ओके, तो वी विल हैव जूम लेक्चर. आज हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग कंप्लीट कर लिया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वुड बी इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. फाइन. ओके, लेट अस एंड द लेक्चर. अभी 1 मिनट ही बाकी है, सो विल एंड द लेक्चर नाउ. गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ. अभी स्कूल अभी स्टार्ट नहीं होने वाला है, तो आप लोग घर पर ही रहिए. इसी तरह से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. राइट? ओके.